Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. Okay, so we have been doing the chapter number 3, plant tissue. In this, the first thing we have talked about is the system of classification. The different system of classifications are there: natural, artificial and phylogenetic, right? Now we are going to continue with the plant kingdom. Okay, so before moving forward, we should be knowing what are the different characteristics of a plant kingdom. मतलब what are main characteristics of the plant kingdom actually. First thing, it is eukaryotes. All the plant kingdom organisms, or you can say the individual in it, are eukaryotes, means they have a well developed nucleus. Okay, they are multicellular. Most of them are multicellular. Okay, then they are autotrophic. The main thing the plant kingdom have been known about for being autotroph. Autotroph means they can make their own food with the help of light, right? With the help of the sunlight, they make the food. Okay, next is the plant kingdom individuals are immobile, means they cannot move from one place to another. Okay, next is the plant kingdom individuals can be aquatic. Aquatic means they can be found in the water, or they can be found in the land. There are different individuals for that. Okay, then very important thing, that plant kingdom individual have cell wall outside its cell. जो प्लांट किंगडम में जो सेल होती हैं उनके बाहर सेल वॉल होती है, एंड स्पेसिफिकली द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. प्लांट किंगडम में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है. नहीं तो और भी जो आपने किंगडम्स पढ़े हैं उनमें सेल वॉल की प्रेजेंस थी, बट दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स. बट plant kingdoms individual are made up of the cell wall of their individual are made up of cellulose. Okay, these are the few main characteristics of plant kingdom. Okay, then the plant kingdom have been classified into phylums, different phylums. Okay, अब phylums हमने किस basis पे divide करे. हमने कह तो दिया कि यहाँ पे 5 आपके phylums होते हैं: algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. These are the 5 divisions. Sorry, not the phylum actually. Very sorry for this. जो प्लांट किंगडम होता है उसमें जो डिविजन्स होते हैं और जो टेक्सा बनता है वो डिवीजन का बनता है. तो यहाँ पे 5 डिविजन्स हैं. ये आपके ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए, ये डिविजन्स किस बेसिस पे बनाए गए. इसमें जो बेसिस था, फर्स्ट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू टिश्यू. प्लांट की बॉडी जो है वो किस तरह से ये टिश्यू में डेवलप हो रखी है, नहीं हो रखी है, किस तरीके से उनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट हो रखी है, उनके पार्ट्स अलग अलग शोकेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. इस बेसिस पे एक तो डिवीज़न किया गया. दूसरा, एबिलिटी टू बियर द सीड्स, मतलब इनमें प्लांट्स में सीड्स होते हैं या नहीं होते, उस बेसिस पे भी इनको अलग अलग डिविजन्स दिए गए. और टाइप्स ऑफ सीड्स, किस टाइप का सीड है, नेकेड है या कवर्ड है, मतलब सीड के बाहर कवर है या फिर नहीं है, इस बेसिस पे इनको अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द divisions of the plant kingdom. The first division is algae. Okay, algae is also known as Thallophyta. Okay, Thallophyta. Now why it has been named like this, अभी आपको ये चीज़ समझ आएगी कि इसका नाम थैलोफाइटा भी क्यों है. एल्गी शायद आपने सुना भी होगा ये वर्ड. बहुत जगहों पे देखने को मिलती है हमें. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक प्लांट किंगडम की ये जो डिवीज़न है.
So main thing in the algae kingdom, algae division is they are chlorophyll bearing. They are having chlorophyll in it, so they can make their own food. Autotrophic भी हैं, ठीक है. क्लोरोफिल है तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है. सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज थैलॉइड. दे आर थैलॉइड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थैलॉइड? थैलॉइड मीन्स यहाँ पे वर्ड आता है थैलस. थैलॉइड वर्ड आया थैलस से, ठीक है. थैलस का मतलब क्या होता है? जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रू लीव्स नहीं होते, मतलब सही मायने में जिन्हें लीव्स कहा जाता है वो ना हो, ट्रू रूट्स नहीं है, रूट्स जो है उनकी जो जड़ें हैं वो भी सही जो मायनों में रूट्स जिन्हें हम बोलते हैं वैसी नहीं है बिल्कुल, बट थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जैसा है उनका, थोड़ा बहुत शायद कि वो रूट्स जैसे दिख रही हैं, बट प्रॉपरली नहीं है, ठीक है. स्टेम भी प्रॉपर नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, मतलब ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट ये नहीं जिनमें होती, जिनकी बॉडी में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, प्रॉपरली नहीं कह सकते कि हाँ ये वाला पार्ट इसका प्रॉपर रूट है. ऐसी बॉडीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं थैलस. तो एल्गी भी कुछ इस तरीके की है. आपने कभी पानी के ऊपर, कभी पानी जब रुका हुआ पानी होता है उसके ऊपर ग्रीन सी आपने काई तैरते हुए देखी है, दैट इज़ एल्गी. वो एल्गी होती है. उसमें आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें कोई स्टेम नहीं दिखाई दे रही है, आपको कोई रूट्स नहीं दिखाई दे रही हैं, कोई पत्तियाँ अलग से नहीं दिख रही हैं, पता नहीं चलता ना. तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? थैलस, ठीक है. समझ आ गई ये बात? मतलब कुछ होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, बट उसको देख के आप बता नहीं सकते कि इसकी लीव्स कहाँ पे है, रूट कहाँ है इसका, और पार्ट्स कहाँ हैं. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पेड़ की तरह लगते हैं जिसमें ऐसे स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं, बट प्रॉपरली वो लीव्स नहीं है, प्रॉपरली स्टेम नहीं है. जो प्रॉपर स्टेम और लीव्स का स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है. तो इसलिए इनको थैलस, इनकी बॉडी को नाम दे दिया गया. सॉरी. ओके, सो दे आर एक्वेटिक, ठीक है. एक्वेटिक होते हैं ये एल्गी. एक्वेटिक मतलब इनको पानी चाहिए होता है. अब पानी फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं या मेराइन में भी, दोनों में मिल सकते हैं. मेराइन मतलब सॉल्टी वाटर, वहाँ पे भी मिल सकती हैं हमें, ठीक है. और ये अलग अलग हैबिटेट्स में हमें देखने को मिलती हैं, अलग अलग जगहों पे देखने को मिलती हैं. मॉइस्ट स्टोन्स, मैंने आपको जैसे बोला पानी की ज़रूरत होती है इन्हें. ज़्यादातर ये पानी के अंदर मिलेंगी या पानी के ऊपर तैरते हुए मिलेंगी, या फिर जहाँ पे थोड़ी बहुत भी नमी मिल जाए इन्हें वहाँ पे ये मिल सकते हैं. तो मतलब गीले पत्थर आपने देखा भी होगा, कुछ पत्थरों के ऊपर काई जमी रहती है ग्रीन सी, है ना. तो वो क्या है? एल्गी है आपकी. वहाँ पे पानी मिल पा रहा है उन्हें तो आराम से रह रही हैं. मिट्टी के ऊपर भी कभी कभी आ जाती हैं, लकड़ी के ऊपर भी लगी रहती हैं, कभी किसी पेड़ के ऊपर देखना, या गिरी हुई लकड़ी होगी उस पर भी उग जाती हैं. तो ये ऐसे जहाँ पे भी इन्हें मॉइस्चर मिल जाएगा, गीलापन, नमी मिल जाएगी, वहाँ ये आराम से सर्वाइव कर सकती हैं कुछ एल्गीज. नहीं तो कुछ को तो बिल्कुल एग्जैक्ट पानी की ही लोकेशंस चाहिए, ठीक है. ओके, सम ऑफ देम अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई. दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. कि फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएशन में, इसे हम क्या कहते हैं? लाइकन, ठीक है. और कभी कभी आपको एनिमल्स के साथ भी ये देखने को मिलती है. एल्गी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहती है, जैसे स्लॉथ बियर. स्लॉथ बियर अगर आप डिस्कवरी देखते होंगे तो आपने शायद देखा भी होगा. एक छोटा सा जैसे टेडी बियर होता है वैसे ही लगता है ये, बट ये बहुत ही लेज़ी होता है, बहुत ही स्लो होता है. पेड़ पे भी चढ़ेगा तो बड़े धीरे धीरे, और धीरे कहने का मतलब रियली बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है. बहुत ही लेज़ी होता है. इसकी शक्ल देखने में ही ऐसी लगती है बिल्कुल लेज़ीनेस, ठीक है. स्लॉथ बियर की बॉडी के ऊपर भी ये एल्गी रहती है कभी कभी. ओके, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज
द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ वेरिएबल। अलग अलग एल्गीज आपको देखने को मिलती हैं, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप्स फॉर्म्स में अलग अलग मिल सकती हैं आपको। कुछ एल्गीज जो होती हैं वो आपकी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म में रहती हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे देखेंगे हम, दिस इज़ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास आपको यहाँ पे डायग्राम में आपको देखने को भी मिल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज सेकेंड वन इज़ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर है, एक सेल एक साथ रह, एक ही सेल अलग अलग अपने उसमें रह लेती है आराम से, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, ओके, एंड फ्यू ऑफ देम ऑल्सो लिव इन कोलोनियल फॉर्म। कोलोनियल फॉर्म मतलब कॉलोनी में रहने वाले। अब जैसे हम लोग एक अलग से तो अपना घर कहीं जंगल में ला के नहीं बैठते ना, कॉलोनी में लोगों के साथ रहना पसंद है, हमारी एक कॉलोनी बनती है, लोग एक साथ अलग अलग अपने अपने घरों में रहते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ एल्गीज जो होती हैं वो कॉलोनी में रहना पसंद करती हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए, दिस इज़ वॉल्वॉक्स, ये कॉलोनी में रह रही है। ग्रीन स्ट्रक्चर आपको एक दिखाई दे रहा है, ये एक वॉल्वॉक्स है, ठीक है, ये एक वॉल्वॉक्स है। एंड ये एक साथ इकट्ठा होके रह रहे हैं, ठीक है। ये पेरेंट कॉलोनी है और इसके साथ अंदर अंदर देख रहे हैं गोले गोले बन रखे हैं, ये भी ऐसे ही अटैच्ड हैं, जैसे ये आपको ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वैसे ही अटैच्ड है, बट ये छोटे हैं तो इनको डॉटर कॉलोनी कह देते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्वॉक्स कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर रहना पसंद करते हैं, मतलब सोशल लाइफ है इनकी एक, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रहते हैं ये। कुछ होते हैं आपके जो फिलामेंटस होते हैं। अब फिलामेंटस से क्या समझेंगे, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखा है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। यूलोथ्रिक्स कुछ इस तरह का होता है, ऐसे बॉडी होती है इनकी, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। अब ये जो है ये है आपका यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगैरा भी कुछ इस तरह, सॉरी स्पायरोगैरा होता है, ये वाला स्पायरोगैरा होता है, यूलोथ्रिक्स इस तरह का होता है कुछ, ठीक है, इस तरह का यूलोथ्रिक्स होता है, ओके। अब आगे चल के मैं इसके बारे में बताऊंगी। ये है आपका स्पायरोगैरा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे स्पायरोगैरा ताकि आपको समझ आए, और ये यूलोथ्रिक्स है, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, मतलब ये तीनों मेथड से आपका एल्गी रिप्रोड्यूस कर सकती है। अलग अलग एल्गीज अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन से होता है। अब मैं फ्रेगमेंटेशन बता देती हूँ आपको, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा आपका ये यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा का। अगर स्पायरोगैरा आपका ऐसे करके टूट जाए यहाँ से, तो इसका जो, मैं यूलोथ्रिक्स को रेज कर देती हूँ यहाँ से, 1 मिनट, ये रेज नहीं हो रहा है, चलिए इसमें नीचे बना के दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। अब ये स्पायरोगैरा है, ये ऐसे करके अलग अलग हिस्सों में हो गया। अब इसका एक हिस्सा, ये एक हिस्सा है, एक फिलामेंट है, ठीक है, ये पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। आगे क्या करेगा, पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा। मतलब ये छोटा सा टुकड़ा अलग अलग हो गए, टुकड़े सारे, ये अलग हो गया, ये टुकड़ा अलग हो गया, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे स्पायरोगैरा को बना सकते हैं, मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और ये जो टुकड़े हैं ये पूरे मैच्योर स्पायरोगैरा बना देंगे, मतलब बड़े हो जाएंगे यही, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन है। यूलोथ्रिक्स भी सेम इसी तरह से अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोल दिया ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। थैलस वही मतलब प्लांट बॉडी। थैलस मैंने आपको समझाया दिया क्योंकि ये प्लांट बॉडी जो है ये
डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। देख रहे हैं आप यूलोथ्रिक्स में आप कहाँ पता पा रहे हैं कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है और आपकी लीव्स कहाँ है, इसलिए इसे थैलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है? स्पोर्स के थ्रू होती है, और स्पोर्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो देखा जाता है स्पोर वो जूस्पोर है। इन फंजाई वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट जूस्पोर। इट इज़ अ फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर, कुछ इस तरह का होता है ये। ठीक है, तो ये जूस्पोर है, ये मूव कर सकता है। ठीक है, जहाँ पे ये इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी वहाँ पे जर्मिनेट हो जाएगा और नया प्लांट बना देगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स या फिर मेनली जूस्पोर से हो सकती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? ये दो गैमीट्स के फ्यूजन से होगा। अब फ्यूजन आपका कैसे होता है इसे समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने वैसे फंजाई में भी पढ़ी थी, बट यहाँ पे भी हम फंजाई ये एल्गी के एग्जांपल्स के साथ पढ़ लेते हैं। अब दो गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं। अब गैमीट्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर गैमीट दोनों ही आपके फ्लैजिलेटेड हैं और एक जैसे साइज़ के, मतलब सेम साइज़ के गैमीट हैं और दोनों में फ्लैजिला है। ठीक है, तो ये वाला आपको कहाँ देखने को मिलता है? क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, ओके, क्लेमाइडोमोनास में जहाँ पे दोनों गैमीट्स एक जैसे साइज़ के होंगे और दोनों ही फ्लैजिला होंगे, दोनों में ही फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। और दूसरा आपका हो सकता है नॉन फ्लैजिलेटेड बट इन सिमिलर साइज़, दोनों के सेम साइज़ है बट फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको किस में देखने को मिलता है? स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा आपका फ्रेगमेंटेशन से हो ही जाता है, उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जब गैमीट्स, दोनों गैमीट्स चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो, दोनों गैमीट्स अगर एक ही साइज़ के हों तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोगैमस। क्या कहते हैं? आइसोगैमस। ठीक है, बस इसमें फ़र्क कहाँ आ जाता है कि क्लेमाइडोमोनास में जो हम सिमिलर साइज़ ऑफ गैमीट्स देखते हैं उनमें फ्लैजिलास दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों ही मूव कर सकते हैं। और स्पाइरोगायरा में जो दोनों गैमीट्स एक ही साइज़ के हैं बट इनमें सिर्फ फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कोई अब मूवमेंट फ्लैजिला के थ्रू तो नहीं हो सकता, तो पानी के थ्रू हो जाएगा या किसी और मीन के थ्रू हो जाएगा, हवा के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम आइसोगैमस कहेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, गैमस किससे हम करें? गैमीट। तो सेम गैमीट मतलब सेम साइज़ ऑफ गैमीट। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए इसे क्लियर कर देते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज, स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अब कुछ क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज़ में तो आपको सिमिलर साइज़ और फ्लैजिलेटेड वाला मिल रहा है, बट कुछ स्पीसीज़ क्लेमाइडोमोनास की ऐसी भी हैं, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास जीनस है, इसकी स्पीसीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जिसमें एक जो है, जो गैमीट है वो बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो इस वाले उसमें हम क्या कंडीशन में क्या बोलेंगे? इसे एनाइसोगैमस। क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमस। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग साइज़ के होंगे। क्लियर? अच्छा, अब इसके अलावा लास्ट वाला है ऊगैमस। इसमें क्या होता है? एक जो होगा वो बड़े साइज़ का होगा, एक गैमीट बड़े साइज़ का होगा और नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता, ये फीमेल गैमीट होगा। अच्छा, मैं फीमेल का सिंबल ये होता है, बायो में फीमेल के लिए सिंबल ये होता है। ठीक है, तो फीमेल का जो गैमीट है वो इस तरह का है, बड़ा है, और जो मेल गैमीट है वो छोटा होगा और मोटाइल होगा, मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ये है मेल का, इसे मेल को इस तरह से दिखाते हैं,
और इन दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, oogamous। जब एनाइसोगैमस और oogamous ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें फ़र्क कहाँ आता है, फ्लैजिला में। इसमें दोनों में ही फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं था एनाइसोगैमस में, यहाँ पे एक में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा जो फीमेल वाला गैमीट है, और मेल वाले में फ्लैजिला आपको मिलता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वॉक्स का अभी हमें एग्जाम्पल देखा था, दिस इज़ वॉल्वॉक्स। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, oogamous, और फ्यूकस का एग्जाम्पल ये है आपको ये वाला देखने को मिल रहा है। इसमें आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी वो oogamous की दिखाई देगी। ठीक है, इतना समझ आ गई बात, ओके, क्लियर। दिस वाज अबाउट द रिप्रोडक्शन। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इस डायग्राम को भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। मैंने आपको वॉल्वॉक्स का तो बता ही दिया है। ठीक है, यहाँ पे कॉलोनियल वे में रहते हैं, ये कॉलोनी में रह रहे हैं। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर फॉर्म में रहता है। अब जो ये वाला क्या है, कारा या चारा, इसके लिए स्पेलिंग थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है, प्रोनाउंसिएशन हम अलग अलग कर सकते हैं, इसे बोलते हैं कारा। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत प्लांट जैसे दिखाई दे रहा है, बट ये प्रॉपर प्लांट की शेप में नहीं है, तो इसे हम थैलेसी बोलेंगे। ठीक है, ये सारे ये जो ऊपर के तीन हैं हमारे, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ग्रीन एल्गी। एल्गीज के भी अभी आप जब फाइलम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेंगे, अलग अलग कलर्स होते हैं इनके, तो ये ग्रीन एल्गीज में आती हैं। ठीक है, ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, दीज थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल्स हैं आपके। अच्छा, अब इनके स्ट्रक्चर्स देख लिए ज़रा। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉड, जबकि ये हमें लीफ के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बट इसे बोल रहे हैं फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड एक तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। मैंने लीफ लाइक कहा, मैंने लीफ नहीं कहा। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर एल्गी में फ्रॉन्ड कहते हैं इसे। अब ये है टाइप, ये आपको स्टेम जैसा दिखाई दे रहा होगा, बट ये भी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, या स्टॉक बोल सकते हैं इसे जो लीफ को और रूट जैसे स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर रहा है। और फिर है होल्ड फास्ट। होल्ड मतलब पकड़ना। तो ये एल्गी को एक जगह पे स्टेबल होने के लिए, अगर ये पत्थरों पे लगी हुई है तो पत्थर को पकड़ के रखने के लिए होल्ड फास्ट काम करेगा, बट ये प्रॉपर रूट नहीं है, दिख रही है आपको, तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये रूट नहीं है प्रॉपर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको दिख रहा है फ्रॉन्ड है, फिर मिडरिब है, जैसे आपको पत्तियों में देखने को मिलता है, यहाँ पे मिडरिब दिख रही है। ठीक है, होल्ड फास्ट आपको समझाई चुकी हूँ मैं, जो कि एल्गी को कहीं एक जगह पे टिकने में मदद करेगा। अगर उसे पत्थर पे चिपके रहना है तो होल्ड फास्ट से मदद करेगा, रूट की तरह काम करेगा, बट प्रॉपर रूट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको इसमें फ्यूकस में आपको देखने को मिल रहा है एयर ब्लैडर्स, ताकि ये पेड़ पानी के अंदर रहता होगा ना, तो आराम से तैर सके। ठीक है, तो एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि, क्योंकि जैसे कि गुब्बारा होता है, गुब्बारे को अगर आप हवा भर के रखते हो तो पानी के ऊपर तैरता है ना आराम से, तो वैसे ही इनमें भी हवा भरी हुई है ताकि ये आराम से डूबे ना, पानी में तैरते रहें। ठीक है, तो इसलिए एयर ब्लैडर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर आप एक इसका एग्जांपल देख रहे हैं, ये है डिक्टियोटा। ठीक है, ये वाला डिक्टियोटा है ये आपका, इसमें भी फ्रॉन्ड है, स्टाइप है। ठीक है, फ्रॉन्ड क्या है आपका, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइप क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दीज टू आर एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी। ये रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, यहाँ पे दिखाई दे रखा है आपको, ठीक है, ये रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं।
यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रॉन्ड देखने को मिल रहा है, मतलब लीफी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये एडिबल है, इसे खाया जा सकता है। इसका नाम है पोरफायरा, ठीक है। ये इसे खाया जा सकता है, एडिबल है ये। फिर आपको ये पॉलीसिफोनिया दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा बहुत प्लांट जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसकी ब्रांचेस हैं ये, बट ये प्रॉपर ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। मेन एक्सिस है बट ये प्रॉपर स्टेम का काम नहीं कर रही है। तो मतलब ये थैलस, सबके सब स्ट्रक्चर क्या है, थैलस है, प्रॉपर प्लांट स्ट्रक्चर नहीं है कोई भी, ठीक है। बात समझ आ गई? डायग्राम आई थिंक समझ आ गए होंगे आपको। चलिए अब इसकी सिग्निफिकेंस पे चलते हैं। एल्गी किस किस काम आती है, कहाँ कहाँ पे काम आती है। ओके, नाउ कमिंग टू द सिग्निफिकेंस। तो एल्गी आर वेरी यूजफुल टू प्लांट, एनिमल्स और मैन, ठीक है। मैंस में बहुत ज़्यादा ये बहुत वैरायटी वे में ये यूज़फुल है। जो आधी से ज़्यादा अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है, 9th क्लास में आपने कार्बन साइकिल पढ़ी होगी। तो कार्बन का फिक्सेशन मतलब प्लांट्स खाना बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन याद होगा आपको। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसको क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपने क्या किया, ग्लूकोज की फॉर्म में लिया है ना, तो इसे क्या कहते हैं, फिक्सेशन, इसी को बोलते हैं फिक्सेशन, ठीक है। तो आधी से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है अर्थ पे, वो किसके थ्रू होती है, एल्गी के थ्रू की जाती है, ठीक है। आधी से भी ज़्यादा मतलब हमारी जो अर्थ पे प्लांट्स प्रेजेंट हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वो भी इतनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं कर रहे जितनी एल्गी कर रही है। तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बात समझ आ रही है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट, बीइंग फोटोसिंथेटिक बाय इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब एल्गीज पानी में भी रहती हैं, तो पानी में फोटोसिंथेसिस करेंगी तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, फोटोसिंथेसिस करने के बाद लास्ट में प्रोडक्ट क्या निकलता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो खाने के लिए काम आ जाता है, ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं प्लांट्स। तो ऑक्सीजन जो प्लांट्स, एल्गी जो पानी में ही डिजॉल्व है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व कहाँ होगी, पानी के अंदर, ठीक है। अब पानी के अंदर फिशेस भी रहती हैं, फिशेस सांस कैसे लेती हैं, फिशेस यही तो ऑक्सीजन को लेंगी, है ना, फिशेस इसी ऑक्सीजन को ही तो करेंगी यूज़। मान लिया ये एक पॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई है ना, ऑक्सीजन आ गई है यहाँ पे। फिशेस जो हैं वो क्या करेंगी, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को ही तो लेंगी, है ना, इस ऑक्सीजन को लेंगी है। बात समझ आ रही है? तो पानी में डिज़ोल्व करने का ऑक्सीजन को ज़्यादातर कौन काम कर रहा है, एल्गी काम करेंगी, ठीक है, जो ज़्यादातर आपकी ऑक्सीजन डिज़ोल्व की जाएगी, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिक ऑफ द फूड साइकिल ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर क्या खाएंगे, खाने में क्या खाएंगे, एल्गी को खा लेंगे। तो उन्हें एनर्जी किससे मिलेगी, एल्गी से, ठीक है। एल्गी फोटोसिंथेसिस से खाना बना रही है और एनिमल्स उन्हें खा के कहीं ना कहीं अपनी भूख मिटा रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम कौन करेगा एक्वाटिक लाइफ में, एल्गी, ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज़ आपकी पॉरीफायरा, मैंने अभी आपको पॉरीफायरा दिखाया था, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ये कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं, और 70 और भी स्पीसीज़ हैं मेराइन एल्गी की जो कि फूड की तरह खाई जाती हैं, ठीक है, फूड की तरह कंज्यूम की जाती हैं, ठीक है, इन्हें खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच एल्गीज़ हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस, आपने स्पॉन्ज देखा है, स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, स्पॉन्ज को पानी के अंदर डालोगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है,
अपने अंदर रोक लेता है। कुछ इसी तरह कुछ ब्राउन और रेड एल्गीज भी कुछ ऐसा सब्सटेंस बनाती हैं जो कि पानी को अपने अंदर पकड़ के रख सकता है। वो कौन है? एल्गिन एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है। एल्जिन एक ब्राउन एल्गी है जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाती है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रो मतलब वाटर, कोलाइड मतलब अपने अंदर पकड़ के रखना, ठीक है। और एक कैराजिन है रेड एल्गी जो कि पानी को पकड़ के रख सकती है। कमर्शियली यूज़ होते हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे इन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है अगार। आपने जेली देखी है कभी? वो जैसे जेली खाने वाली जेली होती है ना, जो देखा है कभी कैसे हिलती है? वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में है बट तभी भी पूरी तरह से सॉलिड नहीं है। उसी तरह से कुछ आपकी आइसक्रीम्स और जेलीज़ बनाने के लिए एक एल्गी से एक सब्सटेंस निकलता है। एल्गी कौन कौन सी? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है। इनसे निकलता है एक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं अगार। अगार यूज़ किया जाता है आइसक्रीम और जेलीज़ बनाने में, सॉलिडिफाई करने में। उनकी जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, वो अगार की वजह से होता है, जो सॉलिड, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम जेली बना रहे हैं उसमें हम अगार डाल देंगे तो ये जेली की जो शेप आई है, जो स्ट्रक्चर आया है, वो अगार की वजह से आता है, ठीक है। तो जो एल्गीज़ ये आइसक्रीम और जेली बनाने में, अगार प्रोड्यूस करने में काम करती हैं, वो है जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया, ठीक है। अच्छा, वेरी मच इंटरेस्टिंग वन मोर थिंग, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था, ज़्यादातर प्लांट्स जो है मल्टीसेलुलर हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो यूनिसेलुलर हैं। जो क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ये कुछ एल्गीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच होती हैं प्रोटीन में, और इनको स्पेस ट्रेवलर्स यूज़ करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरह। अब देखो, जब स्पेस में साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, जो ये एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, अपने साथ बहुत सारा खाना नहीं ले जा सकते, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले जा सकते। अब मीट वगैरह ले जा रहे हैं उठा के, ऐसे नहीं ले जा सकते। इनको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, छोटी छोटी टैबलेट्स दी जाती हैं जिनमें पूरा इनका एनर्जी का सप्लीमेंट्स होते हैं, ताकि इनको पूरी अपने न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से मिले। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं उसमें क्लोरेला और स्पाइरुलिना को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन में भरा हुआ होता है, ठीक है। तो स्पेस ट्रैवलर्स कौन से एल्गी के प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। ओके, देन एल्गी हैज़ बीन डिवाइडेड टू 3 classes, that is Chlorophyceae, Phycophyceae and Rhodophyceae. Okay, in the next video we are going to talk about them also, Chlorophyceae, Phycophyceae and Rhodophyceae, ठीक है। ये और आगे क्लासेस हैं एल्गी की, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू।